Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम पे आप लोग सबको अभिवंदन देता हूँ। 2000 years ago, at the cross of Calvary, something extraordinary happened. 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पे एक अद्भुत कार्य हुआ था। Jesus Christ, He became a living sacrifice for you and me. यीशु मसीह आपके लिए काल्वरी क्रूस पे एक लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में खड़ा हुआ था। God Himself, He sent His only begotten Son, Jesus Christ, so that you may not perish. यीशु मसीह ने अपना एकलौता बेटा आपके लिए भेजा गया था। In the Bible, when we read in John chapter 3:16, we read like this: For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. पवित्र कलाम में इस प्रकार यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है कि एक परमेश्वर ने अपना एकलौता भेजा गया था ताकि जो उस पे विश्वास करे वो अनंत जीवन प्राप्त करे। In the beginning, God, He created the heavens and the earth. He created everything that you see around you. आदि में परमेश्वर ने आकाश और स्वर्ग को सब कुछ बनाया था ताकि हम सब देख सके करके। He in fact created man in His own image. और वह वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया गया था। From the dust He created Adam. He blew His breath onto him and Adam became a living being. और परमेश्वर ने उस मिट्टी से आदम को बनाया और अपने सांस फूंक कर उसमें जीवन आया। Then, seeing that Adam was lonely, God decided to create Eve. आदम को जब देखा वो अकेला है, परमेश्वर ने आदम के लिए एक और जुट रखा गया वहां पे। He pulled out a rib and fashioned and he formed Eve. उसके रिब में से आदम को से एक और निकाला ताकि वो हव्वा बने। Yes, then they were living happily in the Garden of Eden. They were in the presence of God. ईदन की वाटिका में आदम और हव्वा एक साथ रह रहे थे ताकि वो एक साथ खुश होकर परमेश्वर के संग। But one day they decided to hear to a wrong voice. और एक दिन ऐसे हुआ कि उन्होंने एक गलत आवाज को सुना। Yes, the voice that we listen to is so important that determines our future. और जो आवाज को हम सुनते हैं वो हमारे जीवन का अनुभविक और वास्तविक तरीके से हमारे जीवन को आगे लेके जाता है। Yes, Eve was deceived by the devil and it came in the form of a serpent. और हव्वा को वहां पे धोखा दिया गया था और एक सांप के रूप में वहां पे उसको धोखा प्राप्त हुआ। And she was coerced into disobeying God and she in fact plucked the forbidden fruit. उसने एक परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, वास्तव वहां से पेड़ में से उस फल को तोड़कर खाया। He in fact ate it and also gave it to Adam. उसने खुद भी खाया और उसने अपने पति आदम को भी दिया वहां पे। Knowingly or unknowingly, they directly came against God's commandment because God had forbidden them to eat of that fruit of that particular tree. और जानकर या ना जानकर परमेश्वर की जो आज्ञा थी उनका पालन उन्होंने नहीं करा और उस पेड़ में से उस फल को उन्होंने खाया वहां पर। Anything that goes against the will of God is called sin. और जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में होता है वो पाप होता है। Yes, there are consequences to sin. Anybody that sins must die. और पाप के कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो उसे हमें उसके जो फल को हमें देखना पड़ता है। So God had no option but to banish them from the presence of God. They were chased out from the Garden of Eden. परमेश्वर के पास दूसरा कोई उपाय नहीं था, केवल उनको एदन की वाटिका से बाहर निकालने और परमेश्वर की उपस्थिति से उनको बाहर निकालना। In the same way, you and me, we have sinned knowingly or unknowingly, and we have been removed from the presence of God. और आपने और मैंने जान के या अनजान करके हमने जो पाप करने की वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो चुके हैं। Is there a solution? What can we do to come back to God?
और क्या उसका कोई उत्तर है, क्या उसका कोई सुझाव है कि हम परमेश्वर के पास कैसे वापस आ सकते हैं? Yes, the world was full of sin. People were sinning. They were rebelling against God. But God had a solution. He sent Jesus Christ to pay for the price of the sin. और दुनिया के पाप पे पाप करने की वजह से, दुनिया जो परमेश्वर से दूर होने की वजह से, परमेश्वर के पास एक ही उत्तर है, वो यीशु मसीह है। God became man. He came to this earth through Virgin Mary. और परमेश्वर का जो इकलौता पुत्र यीशु मसीह था, वो मरियम के द्वारा इस भूमि में आया। God sent his only begotten Son, Jesus Christ, so that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस पृथ्वी पे भेजा और कहा, जो उस पे विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, बट अनंत काल का जीवन उसको प्राप्त होगा। The question is, have you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? यहाँ पे प्रश्न आता है, क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है कि नहीं? So we learned that Jesus Christ, he came to this earth through Virgin Mary. He was born in a manger. और हमने यहाँ पे पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र जो था वो मरियम के कोख पे इस पृथ्वी में आया और वहां पे जन्म लिया उसने। The birth of Jesus Christ was announced by angels. There were signs in the sky. और यीशु मसीह के जन्म को जो स्वर्गदूतों ने वहां पे उद्घाटन किया और उसके बाद जो चिन्ह थे वो आकाश में प्रकट हुए थे उस समय पे। The message was joy to the world. जो संदेश था वो पूरे दुनिया में फैला गया था। Yes, the Savior of earth was born in a manger in Bethlehem. जो उद्धारकर्ता इस दुनिया का था वो उस एक बेथलेहेम की एक गौशाला में उसने जन्म लिया था। Yes, Jesus, he lived an ordinary life. At the age of 12, he went to the temple and he began to debate with the scholars. यीशु मसीह ने इस बहुत 12 साल तक साधारण जीवन जी के 12वें साल पे वो मंदिर की ओर गया, वहां के विद्वानों के साथ वहां पे वो बात करने लगा। वहां पे He led an ordinary secular life. Maybe he was doing carpentry, he was helping his household. But everything changed at the age of 30 when he bowed before John the Baptist. और वो 12-13 साल तक एक बड़ाई की तरह वो वहां पे काम कर रहा था, लकड़ियों को गूंथ रहा था। उसके बाद योरदन में जो योरदन बपतिस्मा के वहां पे जब पहुंचता है, Yes, he heard a voice. This is my son in whom I am well pleased. This is my beloved. और वहां पे एक आवाज स्वर्ग से सुनता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हुआ हूं करके। Yes, Jesus, he was baptized in river Jordan. When he came out, he began to establish the kingdom of God on this earth. और योरदन की वहां पे जब बपतिस्मा लेने के बाद वो यीशु परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को वहां स्थापना करने के लिए वहां पे आता है। He was on a mission to reconcile man and God. वो एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ वो परमेश्वर और मनुष्य को एक करने के लिए आया था। Yes, Jesus, wherever he went, he saw the people, he had compassion on them, and he did what they wanted for them. और यीशु मसीह उस समय जब लोगों को देखता है तो एक दया के साथ उनको देखकर उनको चंगा करता है। He saw blind men sitting and begging. He came and asked them, "What do you want?" और वहां पे एक अंधे व्यक्ति को देखकर उससे यीशु मसीह पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? He gave sight to the blind. और उस अंधे व्यक्ति को वहां पे वो रोशनी देता है, उसकी वापस उसको देता है। Yes, that is what God did. Yes, he gave light to those who needed light. और यही यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वहां पे जिसको प्रकाशन चाहिए परमेश्वर वो प्रकाश देता है। One word from Jesus changed the lives of people. One touch healed them. और यीशु मसीह का एक स्पर्श और एक आवाज सारी दुनिया को और सबके जीवनों को बदल देता है। You see what happened in those times, yes, in those 3.5 years in which he was doing his ministry on this planet Earth. क्या आप जानते हैं यीशु मसीह के साढ़े 3 साल की जो सेवकाई थी वहां पे क्या हुआ था?
The blind, they received sight. The deaf, they began to hear. The mute, they began to speak. और जो अंधा था उसने रोशनी पाई, जो बहरा था उसने सुनने पाया, और जो लंगड़ा था वो चलने लगा था उस समय पे। In those times, leprosy was an incurable disease. There were scores of lepers, and Jesus touched them and healed them. और उस समय में कोढ़े व्यक्ति बहुत ज्यादा उस समय में थे, और यीशु मसीह उन्हें छू कर उन्हें चंगा किया उस समय। Yes, in those times, leprosy was an incurable disease, and these lepers, they were outcast of the society. They were banished from those cities. और जो कोढ़े, जो बीमारी से जो लोग थे उस समय पे, वो समाज में वो सबसे बाहरी पिछड़े अवस्था में थे, और यीशु मसीह उनको दोबारा उनको चंगा करता है। Nobody could go near them, nobody could touch them, nobody could speak to them. They were outcast from the society, but Jesus had compassion on them. क्योंकि उस समय पे कोई उनसे बात नहीं कर सकता, कोई उनको छू नहीं सकता, कोई उनके पास नहीं जानता, बट यीशु मसीह उनके पास जाता है और उनको छूता है। When Jesus touched them, leprosy did not enter into Jesus, but leprosy left those lepers and they were cleansed. और जब यीशु मसीह उन कोढ़ी व्यक्ति के पास जाता है, जब वो अपना हाथ फैलाता है, तो वो लोग चंगे हो जाते हैं और उस कोढ़ी अवस्था से वो बाहर आते हैं। Remember, this was an incurable disease, but Jesus can even heal the incurable diseases. और ये बात आप ध्यान रखिए, ये जो बीमारी थी ये कभी चंगी नहीं हो सकती थी, बट यीशु मसीह ने वहां पे उन कुष्ठ रोगी को छू कर उनको चंगा किया। And remember that leprosy, this was a chronic disease or a long-term disease. That means that Jesus can even heal your long-term illnesses. और आप ये बात को समझे कि जो उस समय में जो कोढ़ी अवस्था थी, ये जो कुष्ठ बीमारी थी, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी थी, बट यीशु मसीह ने वहां उनको छू कर चंगा किया, और यीशु मसीह आपकी जो लंबे समय की बीमारी को भी वो चंगा कर सकता है। In those times, there was no medicine for leprosy. There was no cure for leprosy. But Jesus, He could heal those things. He can do the impossible in the same way. He can touch you and heal you from the impossible situation that you are going through in your life. और आप ये बात समझे कि उस समय पे जो कोढ़ी व्यक्ति थे, उनके लिए कोई बीमारी नहीं थी, उनके लिए कुछ चीजें नहीं थी, बट यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। और आपके जीवन में भी अगर कोई लंबे समय से कोई बीमारी है, या जो आप उस पर परेशान है, तो यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। In these days of COVID-19 or coronavirus, where people are struggling for one breath, what do you do in those struggling times? और अभी के जो कोविड-19 या जो कोरोना वायरस के समय पे लोग अपने सांस लेने के लिए वो लोग बहुत ज्यादा कष्ट में होते हैं। My dear friend, when man cannot do a thing, turn to Jesus Christ. और आप ये बात समझिए कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, बट आप परमेश्वर की ओर मुड़िए, परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। The Bible says, "Call unto me, and I will answer you." पवित्र कलाम इस प्रकार बोलता है, मेरे को आप पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Jeremiah chapter 33:3, "Call unto me, and I will answer you." यिर्मयाह की किताब 33:3 में ऐसे बोला गया है कि मुझे आप पुकारिए और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। It does not say that call unto me, I might answer you, I might think about answering you. No, it says call unto me and I will answer you. और उसमें ऐसा नहीं बोलता कि तुम मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा या नहीं दूंगा, ऐसे नहीं, बट यहाँ पे इस प्रकार बोला गया है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। God is not a man that he should lie. If God has said something, definitely it is so. परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो झूठ बोलने के लिए, अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है तो परमेश्वर वो करके ही रहेगा। This is God's phone number, 333. Call unto me and I will answer you. Are you ready to dial heaven? ये परमेश्वर का हेवन का जो नंबर है कि परमेश्वर को पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा करके। Yes. Whatever be the situation that you're going through, whatever be the level of difficulty that you're going through, whatever be the kind of impossible situation that you're going through, you know who can solve your problems. आपके जीवन में कितनी बड़ी कठिनाई की समस्या हो, कितनी बड़ी दिक्कतों में से आप गुजर रहे हो, बट आप परमेश्वर को जब पुकारेंगे तो परमेश्वर वहां आपको उत्तर देगा। The God we serve, He is the master of impossibilities.
और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सब कुछ करने योग्य परमेश्वर है। Yes, is there anything too hard for me? और परमेश्वर वहां पूछता है, क्या मेरे लिए कुछ मुमकिन है? Can't the God who breathed into the nostrils of Adam fill you with the breath of life? और आदम की सांस नाक की ओर जाकर अपने सांस को फूंक कर उसको जीवन वहां पे देता है परमेश्वर। Can't God who created man from the dust, can't he bring them back to life? और मनुष्य को मिट्टी से बनाकर उसको वापस जीवन की ओर लेके आने वाला परमेश्वर। Yes, understand who your God is. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is the maker of the heavens and the earth. ये बात को आप समझे कि परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सब कुछ करने योग्य परमेश्वर है करके। Not only that, he is your loving Father. और यही नहीं कि वो आपका प्रिय पिता है, वो आपका। He loves you, he loves you, he loves you. और वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है वो पिता। In this world, several people might promise to love you, but they have many strings attached to it. और कई लोग आपसे प्रेम करेंगे करके बोलेंगे, बट वो आपसे प्रेम नहीं करते, कुछ मतलब के लिए वो आपके पास आते हैं। Yes, if you do something, I will love you. If you continue to do these things, I will love you. That is man's love. But I'm talking about God kind of love, the unconditional love. और यहाँ के जो लोग होते हैं वो आप उनके लिए कुछ करके देंगे, कुछ आप उनकी बात सुनेंगे तो आपसे प्रेम करेंगे, बट परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगापे प्रेम है, वो कुछ देखे बिना वो आपसे प्रेम करता है। Yes, for God so loved the world. The world includes you and me, and it includes 7.8 billion people who live on planet Earth. और वो जो जो दुनिया है उसमें आप और मैं हैं, और उसमें 7.5 बिलियन लोग उसमें हैं यहाँ पे। Yes, these people, they might be from different cultures, they might belong to different caste, creed, they might belong to several other provinces. But let me tell you, oh God, He loves each one of you. He is a universal God. क्योंकि जो लोग हैं वो अनेक गोत्र से, अनेक जाति से, अनेक देश से, अनेक मुल्क से लोग होंगे, बट परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, पूरे जगत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Some might be rich, some might be poor, some might be educated, some might be uneducated, some might be favorites, some might be rejected. But let me tell you, Jesus loves every one of you. और यहाँ पे कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ अच्छे दिखते होंगे, कुछ नहीं दिखते होंगे, कुछ काबिल होंगे, कुछ नाकाबिल होंगे, बट यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। It is your sin that separates you from God. You might not enjoy the presence of God because you are going in the face of the world. There is a solution. Are you ready to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? जो आपको और परमेश्वर को दूर करने वाला जो वस्तु है वो पाप है। अगर आप तैयार हैं कि परमेश्वर के पास वापस आने के लिए, यीशु मसीह के करीब आने के लिए? He has in fact forgiven you. That is what you see at the cross of Calvary. Jesus Christ, His blood like a lamb. The last drop of blood was shed for you and me at the cross of Calvary. यीशु मसीह को देखिए, काल्वरी क्रूस पर उसने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है, एक मेमने के समान जो उसके अंत तक उसके शरीर से सारे एक एक बूंद की लहू आपके लिए उसने धो दिया है आपके लिए। Yes. Are you ready to say, Lord, I am sorry. I repent of my sins. He is ready to embrace you. He is ready to bring you back as His precious child, my dear friend. और क्या आप तैयार है परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से क्षमा मांगकर एक पश्चाताप करने के लिए? परमेश्वर आपको गले लगाएगा, परमेश्वर आपको अपने करीब लेके आएगा। We have all sinned and fallen short of the glory of God. We have all committed wrongs, but Jesus is ready to wash you with His precious blood. क्योंकि हमने पाप करके परमेश्वर की महिमा को खो चुके हैं, और उसके बावजूद परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वापस आए परमेश्वर के पास, ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करे।
Jesus took your sin, your sickness, your shame, your curse, everything at the cross. और यीशु मसीह ने आपके पाप, आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी हर एक घटनाओं को सब काल्वरी क्रूस पे आपके लिए उसने ले लिया, उठा लिया। He was beaten up, he was tortured, he was made to wear a crown of thorns. और यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को वहां पर उसके मजाक उड़ाया गया, और जो मुकुट था, जो मुकुड़ी था, उसको भी उसके सिर पे रखा गया वहां उस समय के सेना के लोगों ने। Yes, he was spat upon, he was mocked, even his dress, they divided it among themselves. यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, यीशु मसीह को वहां पे सबके सामने मजाक बनाया गया, उसके कपड़े को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया था उस समय पे। His face was so unrecognizable. और यीशु मसीह के चेहरे को अगर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वो ना पहचानने के लायक उस समय उसका चेहरा था। By his stripes you were healed. एक बाइबल बोलता है, मेरे कोड़े खाने की वजह से आप चंगे हुए हो करके। Are you ready to accept healing by faith? क्या आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर से आप अपनी चंगाई के लिए आप तैयार हैं? Jesus did everything for you at your cross. He finally, yes, he spread out his arms and he gave his life for you at the cross. He was nailed to that cross by 3 nails. और यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे सब कुछ कर दिया, उसने अपने दोनों हाथ को फैला दिया और अपना जीवन देकर उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया, और वहां पे उस काल्वरी क्रूस पर। Yes, it was not those 3 nails that held him to the cross, but it is a love for you and me that held him, that nailed him to the cross. और उस क्रूस पर उसको 3 को नेल्स के साथ उसको वहां पे मारा गया ताकि वो आपके लिए मारा गया। Yes, my dear friend, Jesus loves you. He died for you. I'm not here to talk about a dead God. Jesus, he died. He was buried. He was in the tomb for 3 days. और मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताना चाहता हूं। वो वहां पे उस tomb में उसको रखा गया और वो वापस आया। But on the 3rd day, he rose again from the dead. और तीसरे दिन पुनरुत्थान के दिन वो वहां पे उठाया, जिलाया गया। Yes, he broke the lockdown. और उसने यीशु मसीह उस लॉक उसको तोड़ दिया था। Yes, the imperial seal that the Roman soldiers put, it was smashed. और जो वहां की जो मुद्रांक थे, वहां के जो उसके अगेंस्ट पे रखे थे, सब चीजों को यीशु मसीह ने वहां तोड़ दिया था। Yes, a stone was rolled away. The only thing that was left inside was just a few clothes of linen. But Jesus was not there. The tomb is empty. Jesus rose again from the dead. उस कब्र में से जो बाहर रखा था उस पत्थर को हटा दिया था, और उस कब्र में से यीशु उस कब्र में नहीं था, क्योंकि वो तीसरे दिन जी उठा था। My dear friends, we are talking about a living God. और मेरे प्रिय मित्रों, मैं जो आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसे जीवित परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। Yes, Jesus appeared to his disciples and so many other people. Then he ascended into heaven. और यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद वो शिष्यों के पास पहुंचा, अलग अलग तरीके, उसके बाद वो आकाश स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। Before that, he gave us a promise. I am coming back quickly. उसके बाद यीशु मसीह ने एक वाचा दिया कि मैं वापस आऊंगा। Yes, he is not going to come back as a child in a manger. He's not going to come back as a helpless child, but he's going to come back as the King of Kings and the Lord of Lords. और यीशु मसीह पुराने एक बच्चे की तरह इस पृथ्वी में नहीं आएगा, और एक ऐसे मेंशन में जैसे उसने जीवन दिया था वैसे नहीं आएगा, बट राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की तरह वो वापस आएगा। The question is, are you ready to meet your Savior? और सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप क्या तैयार हैं आपके उद्धारकर्ता से मिलने के लिए? If you have not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior till now, then this is the day, this is the most opportune time that you ever get. और अभी तक आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता, अपने स्वामी की तरह अगर आपने स्वीकार नहीं किया, तो ये सबसे बहुमूल्य समय है
कि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता की तरह आप स्वीकार करने के लिए। He knocks at the door of your heart. Are you ready to open your heart to Jesus Christ? वो आपके दरवाजे की तरफ वहां पे खटखटा रहा है, आपके हृदय के वहां पे खटखटा रहा है ताकि आप उसको दरवाजा खोले। Say to Jesus, Lord, I am a sinner. I repent of my sins. From this day, I decide to be your child. और आप क्या बोलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं अपने पाप को छोड़कर मैं आपका बच्चा बनना चाहता हूं करके ऐसे आप क्या तैयार हैं? Are you ready to follow Jesus Christ all the days of your life? क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन के अंत तक अपने उद्धारकर्ता, अपने स्वामी की तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? No turning back, no turning back. नहीं मुड़ना, नहीं मुड़ना, ऐसे समान। Yes, Jesus loves you, my dear friend. He knows each one of you. हे मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आप सबको जानता है। You might be saying that nobody in the world knows me, nobody understands me, nobody knows my pain. और आप बोलते होंगे इस पृथ्वी में यहाँ पे कोई मुझे नहीं जानता, मेरे को कोई प्रेम नहीं करता करके। Yes, Jesus, He knows each one of you. He has engraved you in the palm of His hand. यीशु मसीह आपको जानता है क्योंकि अपने हथेली पे यीशु मसीह ने आपका चित्र बना कर रखा है। Yes, He will never leave you nor forsake you. वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। He is Emmanuel. He is Lord among us. वो परमेश्वर है, इम्मानुएल है कि वो आपको हमेशा आपके संग रहेगा। He has planned for you. It is not to harm you, but to prosper you. वो उसके जो उद्देश्य है आपको बचाई के ऊपर की ओर लेके जाने के लिए, कभी आपको नाश करने के लिए नहीं है। My dear friend, you still have somebody who loves you, and that is Jesus Christ. और आपको बोलने के लिए एक व्यक्ति है, यीशु मसीह, जो आपसे प्रेम करता है। My dear friend, let not your heart be troubled. और आपका हृदय व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। Maybe you're worrying, you are worrying, you're anxious about tomorrow. But let me tell you, let not your heart be troubled. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कल के बारे में सोचना नहीं, आपको कल के बारे में चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपके कल को जानता है। Let tomorrow worry about itself. और कल के बारे में आपको नहीं सोचने की जरूरत है। Yes, we know that the life every day has its own problems, but be of good cheer. I have overcome the world. और हमेशा जीवन के हर एक दिन में हर एक परेशानी है, बट आपको धैर्य रख के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं आगे बढ़ते रहूंगा। Yes, life is hard, but be of good cheer. You're not alone. Jesus Christ is for you. जीवन बहुत ही कठिन है, जीवन आपको बहुत अच्छे हृदय के साथ आपको बढ़ना है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। Yes, my dear friend, if God be for you, who can be against you? क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरोध में कौन रहेगा? With God, you're not a minority, you are a majority. क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपकी विपत्ति रहने वाले वो आपके विरोध में नहीं हो सकते हैं। You can run through a troop. क्योंकि आप बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। Yes, you can overcome all obstacles. You are more than a conqueror. क्योंकि आप एक बहुत बड़े अद्भुत तरीके से आप सब चीजों के ऊपर आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। With God for you, every closed door shall be opened. Ephatha. क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ है तो सारे जो रास्ते दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। You can unlock every closed door because you have Jesus, the way maker for you. क्योंकि आपके सामने हर एक बंद दरवाजे खुले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके संग है। Maybe some of you, you want a better life. You are struggling to make it better in life. क्योंकि आप अपने जीवन को और संपूर्ण करना चाहते हैं और आप सोचते हैं और बड़ा करने के लिए। Maybe you did everything, but you failed miserably.
आपने बहुत कुछ किया होगा, बट आप उन सब चीज में फेल हो चुके हैं, आप हार चुके हैं उस चीजों में। Let me introduce to you the Waymaker. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. यीशु मसीह ने बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सब करने वाला हूं करके। Yes, maybe you are seeking truth. Maybe you have read a lot of books. You wanted to find the truth. But let me introduce to you the truth. Jesus Christ Himself is the truth. क्योंकि मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है। आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, बट यीशु मसीह ही सब कुछ करने लायक है, विश्वास योग्य है। Maybe you are struggling because the whole aim in front of you is that you want a better life. You want to be happy in your life. But let me introduce to you the source of happiness, the source of joy, the life giver, Jesus Christ. He Himself is life. क्योंकि आप अपने जीवन से बहुत समस्याओं से परेशान हो चुके थे, आप अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते थे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन का जो उद्धार करने वाला, आपके जीवन में जो खुशियां लेके आने वाला एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। In these times of COVID-19, when you see people all around you dying because they don't have oxygen. और इस कोविड के समय पे लोग जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वायु या ऑक्सीजन लेने के लिए उनके पास नहीं है। Look at the love of God. Jesus has given us so much oxygen. We have been inhaling it freely all these years without knowing about the value of it. और आप सोच के देखिए यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ने हमें जो ऑक्सीजन मुफ्त में दी है, ताकि हम उसको उसको सांस ले, और उसको उसका कोई हमें कभी उसकी हमने कदर नहीं की है उस पर। If somebody is admitted to a hospital and if he is administered oxygen, at the end of the day, they receive a bill for the oxygen that they have inhaled. और आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति को अस्पताल में जब डाल देते हैं, उस अस्पताल में जब वो ऑक्सीजन वायु जब लेता है, तो अस्पताल के लोग उसको एक बिल फाड़ के देते हैं कि इतने का तूने ऑक्सीजन यूज किया है करके। We thank God for doctors and nurses and everybody who is doing the very best to save lives. क्योंकि हमें हर एक डॉक्टर्स और हर एक नर्सेस का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से कि वो आगे खड़े हैं इस चीज They पे। are doing the best with whatever little that they have. But this is the time when we also must realize how God has led us thus far. और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए आने वाले लोगों के लिए सबसे बेहतर चीजें कर रहे हैं। और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें आगे आगे बढ़ा रहा है। If you just remember your date of birth and the number of years that you have lived on this planet till now, how much oxygen have you inhaled freely? और अगर आप अपने जन्म तिथि को और जन्म के दिन को एक बार आप याद करके देखें और आज तक एक बार देखें, तो आपको समझ आएगा कि आपने इस पृथ्वी पर कितना ज्यादा ऑक्सीजन आपने मुफ्त में सांस लिया है करके। If you just even try to calculate it, it will run into a lot of money. और एक बार अगर आप उसका उसका गिन 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 के एक बार देखेंगे, तो वो पैसे बहुत ज्यादा होंगे कि इतने ज्यादा आपने उसका उपयोग कर लिया है। Now the question is, what have you done with your life till now? What have you done till now? और आपके लिए एक प्रश्न है कि आपने अपने जीवन से अभी तक क्या किया है। Have you secured your eternal home, which is heaven? Have you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior? Have you introduced Jesus Christ to the perishing world? और क्या आपने अपना जो अनंत काल का जो भवन है, क्या आपने उसके लिए प्रयास किया? क्या आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में लिया? क्या आपने यीशु मसीह को दुनिया से एक बार मेल मिलाप कराया क्या? Maybe you might say that I have so many friends on Facebook. You might say I have 5,000 friends on Facebook. You might say, so I have so many friends. I love them. But if you really love them, have you introduced life to them? Have you introduced Jesus Christ to them? क्या आप बोलते हैं क्या मेरे पास फेसबुक पे या मेरे पास 5,000 है, मेरे पास 4,000 लोग हैं? क्या आपने अपने जीवन में अपने दोस्तों से क्या यीशु मसीह को मिलाया है कि नहीं?
Maybe you're all okay because maybe a Sunday school teacher, maybe your parents, maybe some of your friends, they took the time to introduce to you a savior of the world. That is why you have accepted Jesus Christ as your savior of the world. But what about others? If you keep quiet, who will speak to your friends? और क्या ऐसे संडे स्कूल के वहां पे टीचर ने या उस चर्च में कलीसिया में थे, वहां के लोगों ने यीशु मसीह को आपके बारे में बता के दिया और आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में लिया? और क्या होगा कि जब आप यीशु मसीह को दूसरे लोगों पे जब नहीं बांटोगे? My dear friend, time and tiding waits for no man. We all know that. But right now, when we see people dying all around us, the question that is coming in front of you, what have you done with your life? और जब इस दुनिया में जब इतने सारे लोग जब मर रहे हैं, तो आपने अपने जीवन का क्या उद्देश्य था? आपने उनके लिए क्या करा जब पूरी दुनिया के लोग मरे जा रहे हैं? If a person lives on this earth for 100 years, if you calculate, you will find that it is around 36,500 days. It's just those number of days. और ये व्यक्ति अगर 100 साल तक अगर जीता है 36,500 days. और 36,000 दिन इस पृथ्वी पे वो जीता है, If you calculate your own age, you might think that you have used a sizable number of those days, and also remember half of the time you slept. और अगर आप उसमें से देखिए तो एक अच्छा गिनत आपने अपने जीवन का वहां पे कर लिया हो और अच्छा समय आप सो चुके हो। We do not know what will happen tomorrow. When we look all around us, there is panic, there is fear, there are pandemics. और अगर हम आसपास में देखें तो हमें डर लगता है और वहां के लोग मर रहे हैं, ऐसे करके हमें ऐसा एक डर हमारे पास आता है। Let me tell you, fear not, and fear not. और वहां पे इस प्रकार बोला गया कि आप डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं करके। My dear friend, God is your shield. He is the one who will protect you. और क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा उद्धार है, वो तुम्हें संभाल के रखेगा। You will live long and declare the works of the living God. क्योंकि आप बहुत समय तक जिएंगे और परमेश्वर की भलाइयों का आप घोषणा करेंगे। Yes, every plan of the enemy, we break it in Jesus' mighty name. और हर एक बंधनों को हम यीशु मसीह के नाम पे तोड़ते हैं। Yes, we declare healing in the land. हम यीशु मसीह के द्वारा एक चंगाई इस देश में घोषणा करते हैं। Be healed in the name of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के नाम पे चंगाई घोषणा करते हैं। Yes, the God we are speaking about is Jehovah Rapha. He is the healing God. और हम जिस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं वो यहोवा राफा है, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। If you are sick right now, be healed in Jesus' mighty name. और अगर आप अभी बीमार हैं तो आप यीशु मसीह के नाम पे चंगे हो जाएं। Bible says, lay hands on the sick and they shall recover. और पवित्र कलाम बोलता है आप जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखे, वो चंगा हो जाएगा उसी क्षण। Yes, I am talking about the name which is higher than every other name, the name of Jesus Christ. और मैं ऐसे नाम के बारे में बता रहा हूं, यीशु मसीह का नाम जो सब नामों से बड़ा नाम है। Every sickness that you know, it is a name. Cancer is a name, HIV is a name, diabetes is a name, hypertension is a name, stroke is a name. But I am telling you, the name of Jesus is higher than every other name. और जैसे बीमारियां हैं, कैंसर है, जो डायबिटिक्स है, अगर एड्स है या जो अलग अलग बीमारियों के नाम है, बट मैं आपको ऐसे एक नाम के बारे में बता के देना चाहता हूं। सो वो सब नामों से ऊंचा नाम है जो नाम है यीशु मसीह। COVID is a name. COVID-19 or coronavirus is a name. But I'm talking about Jesus Christ, the name above every other name. अगर कोविड जो 19 है वो एक नाम है, या कोरोना जो वायरस है वो एक नाम है, बट मैं ऐसे नाम के बारे में बताना चाहता हूं जो सब नामों से बढ़कर है, वो नाम है यीशु मसीह। Yes, I am talking about the good physician. I am the Lord that healed thee. और मैं एक अच्छे फिजिशियन के बारे में आपको बता के देना चाहता हूं जो यीशु मसीह है। Yes, he is Jesus Christ. Right now, receive your healing by faith. We rebuke every sickness in Jesus' mighty name.
और हम विश्वास के द्वारा अपने आशीष को आप प्राप्त करें, यीशु मसीह के नाम पे अभी चंगे हो जाए। The whole Bible we can see Jesus doing the impossible things. अगर पवित्र कलाम को अगर हम देखें तो जो असंभव चीजें थी, यीशु मसीह ने असंभव चीजों को किया है। Yes, the lame, they began to walk. They paralyzed, they took the beds and went home. और जो अंधा था, जो लंगड़ा था, वो चलने लगा, जो पड़ा हुआ था बिस्तर में, वो खड़ा हो गया यीशु मसीह के नाम पे। The dead came back to life. और जो मृत्यु थी वो जीवन के रूप में वापस आता है। Yes, the widow of Nain, she lost a only son, but Jesus, he stopped the funeral procession and touched the coffin and he came back to life. और नाइल की विधवा की जो बेटा था, यीशु मसीह जब उसको वहां पे, जब फ्यूनरल के वहां पे जाकर उसको रोक कर उसको बोलता है कि वापस जीवन की ओर आ, और उसी क्षण उसका बेटा उसको वापस देता है यीशु मसीह। That mourning party, it became a rejoicing party. और रोने वाली जो संग थी वो खुशी की ओर बदल जाता है। Jesus canceled that funeral. और यीशु मसीह उस फ्यूनरल, उस सेवकाई को रोक कर उसको बंद करता है। Right now we invoke the name of Jesus, a name that can give life to the dead. और हम ऐसे नाम का नाम बोलते हैं जो सब नामों से बढ़कर है, यीशु मसीह का नाम। Rise up in Jesus' mighty name. और यीशु मसीह के नाम पे खड़ा हो जा। Every impossibilities, we cancel it, let it become possible in Jesus' mighty name. और जो भी असंभव है, हम उस असंभव को यीशु मसीह के नाम पे बोलते हैं, वो असंभव होने के लिए। Yes, we declare freedom in Jesus' mighty name. Every fear, we cast it out in Jesus' mighty name. और सारे भय को हम हटाते हैं और वहां पे स्वतंत्रता की घोषणा हम वहां पे करते हैं। Be of good cheer. और एक अच्छे बुजुर्ग की तरह आप खड़े हो जाएं वहां पे। Yes, my dear friend, Jesus loves. क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। Shall we look to the Lord in prayer? क्या हम परमेश्वर की ओर देख के प्रार्थना करें? Our loving Heavenly Father, we want to thank you for this wonderful time. हमारे स्वर्गीय पिता, हमसे प्रेम करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए। Lord, we pray for each and every person who is going to watch this program at any point of time. Lord, we do not know anything about them, but you know everything about them. और हम इस समय इस प्रोग्राम को आने वाले दिन पे आने वाले समय पे देखने वाले उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम उनके बारे में नहीं जानते हैं परमेश्वर। Lord, you know everything. You have engraved them in the palm of your hand. You have numbered the hairs of the head. और परमेश्वर, आपने अपने हथेली पे उनके चित्र को बना के रखा है। आपने उनके दिनों को गिन कर रखा है अपने If पास। they lack anything in their life, Lord, fill it. और अगर उनके जीवन में कुछ भी कमी है तो आप भरे उनके जीवन को। Lord, I told them that you are a loving God, you're a good God. Lord, embrace them, Lord. Lord, touch them, Lord. Heal them, Lord. क्योंकि मैंने उनसे बोला है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको गले लगाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम कर कर आपको आगे बढ़ाएगा करके। Lord, I told them what you did at the cross of Calvary. I told that you died for them. You were dead, you were buried, you rose up on the third day, and you promised to come back again. Lord, right now, as they repent of their sins, Lord, thank you, Lord, for forgiving them. और जैसे मैंने आपको उनको मैंने बताया है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कालवरी क्रूस पे मरा, तुम्हारे पापों को लेकर, उसके बाद तीसरे दिन वो जी उठा, उसके बाद वो तुम्हारे लिए वापस आएगा करके मैंने उनको बताया है आपके बारे में करके। Lord, we pray for the family members, those who are not yet saved. We command, let them be saved in Jesus Christ's name. Let them know the love of Jesus Christ. Let their names be engraved in the book of life. और हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बचाए नहीं गए हैं, उनके परिवारों को वापस आए, उद्धार में आए, ताकि वो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के प्रेम में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray for the missionaries, the men of God, people who preach about you, who proclaim about your goodness. Lord, we pray for them and the families. Lord, protect them, Lord. Lord, protect them from the pandemic.
Lord, let them lack nothing. Lord, be with them. और परमेश्वर हम सारे मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके जो सुसमाचार को लेके जाते हैं, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में किसी चीज की घटी ना हो। वो परमेश्वर इस समय पे आप उनको संभाल कर रखिए परमेश्वर। Lord, we pray for the nation of India, the second largest population in the world. Lord, let them know that there is only one true God, and His name is Jesus Christ. और हम भारत को जो पृथ्वी में सबसे दूसरे स्थान पे है पॉपुलेशन की वजह में, हम उस देश के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि यीशु मसीह का नाम को वो जाने परमेश्वर। Yes, let them receive Jesus Christ as the Lord and Savior. Lord, let them repent of the sins, and Lord, forgive them and make them your children. और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके पापों को आप क्षमा करें, वो परमेश्वर की ओर आए ताकि वो परमेश्वर के बच्चे बने और परमेश्वर के और मार्ग पर चले परमेश्वर। Lord, we ask this in Jesus' mighty name. Amen. Amen. और हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। My dear friends, have you मेरे accepted मित्रों, Jesus Christ as your Lord and Savior? क्या आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार किया है? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया इस पृथ्वी पर ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो अनंत काल प्राप्त करे, कभी नाश ना हो, ताकि वो परमेश्वर के पास आए। Jesus loves you. क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है।